very cheerful afternoon to all my dear Scalites. As I've told you in my previous video also, in the previous lecture also, that due to the lockdown, which is due to pandemic COVID-19, yes, or novel coronavirus, the books are not available to me. So that is why I will be taking the help of my phone. Okay, so today we are going to study the first chapter of history, and to revise your memory, we have already completed one chapter of geography. Now we will be proceeding with first chapter of history, that is when, where, why and how. So before we proceed the chapter, before we start the chapter, let us first take up the important terms which will help you out to understand this particular chapter more clearly. Okay, so let us take up the terms. The first term is historians. Now students, what are exactly historians? Historians are those people who study the past, or they jot down or write down the important events related to history or past. Okay, then we come to the debate. Debate is an important is discussion on important topics which is related to public interest. Okay, so now we move on to periodization. Periodization is you may say to divide a particular time period into segments. Okay, or to divide the period into segments, or to divide the time into different periods or segments. Okay, now we move on to ancient. Ancient means very old, very old. Okay, now medieval. Actually, see, as I've told you, in 6th, 7th, 8th history have been divided into 3. That means in 6th standard you have studied the ancient history. In 7th you have studied medieval history, and now you are moving on, you will be studying modern history. Okay, so medieval, actually the medieval period in India means the second half of 8th century till the first half of 18th century. Okay, then we come to colonization. Colonization, when a particular group or a particular empire take the control over any other kingdom or the group. Okay, now we move on to subjugation. Subjugation means to take control over. Calligrapher. Calligrapher means a person who is well skilled, who is able to write very beautiful. Okay, then survey. Survey, what is the meaning of survey? Survey means कि when you see, when you take a round of a particular land, you take the measurement and other records also in order to make a map, then this particular process is known as survey. Now what are archives? You may say कि the official yes, a room or a place where the government official records are kept. That particular room is known as archive, or the record rooms you may say. Okay, so now let us we have undergone through some important terms related to the chapter. Now I will be focusing on some important dates also, which are very important for this chapter. Important dates are 1773. In this, Warren Hastings became the first Governor General.
Yes. So the important years or the important dates related to this chapter is 1773. Why is it important? Because in this year Warren Hastings became the first Governor General of India. Okay, then 1782 first map was produced by James Rennell. Okay, then 1817 James Mill, he published a very massive means very huge 3 volume, matlab it was having 3 parts of work. And what was the name of that book? A History of British India. It was having 3 parts. Okay, then 1920 में क्या हुआ था कि National Archives of India came up. That means National Archives means the archives, as I have told you, the record rooms were set up on the national basis. Okay, now we move on to the chapter. Yes, now let us start with the chapter. In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. In this, he divided Indian history into 3 periods: Hindu, Muslim and British. This periodization came to be widely accepted. अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 1817 में क्या हुआ था, जो जेम्स मिल थे वो कौन थे? वो स्कॉटलैंड को बिलोंग करते थे और वो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, इवन वो पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे. उन्होंने एक 3-volume वर्क हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के नाम से एक बुक पब्लिश करी जिसके 3 पार्ट्स थे. ओके, और उसके अंदर उन्होंने क्या किया था कि जो इंडियन हिस्ट्री को था, इंडियन हिस्ट्री को उन्होंने 3 में डिवाइड किया था. दैट वाज हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश बेसिकली. और ये वाला जो पीरियडाइजेशन था, दैट मीन्स कि जो इस तरह से जो पीरियड डिवाइड किया गया था, इसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया. लोगों को बहुत कन्वीनियंट लगा. ओके, तो वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू पीरियड्स टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम एंड इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू अस. दैट मीन्स कि हम हिस्ट्री को बेसिकली क्यों पीरियडाइज करते हैं, क्यों सेगमेंट में डिवाइड करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि हम उसकी चीज़ों को, हर एक पीरियड को बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली समझ सकें. फिर मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड ईयर्स. अब क्या था कि जो अगर हम सिर्फ ब्रिटिशर्स को छोड़ दें तो हिस्टोरियंस की बात करें तो हिस्टोरियंस ने बेसिकली किस तरह से इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया है? एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, एज आई टोल्ड यू. वन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज़ द, और सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है वो इंडियन हिस्ट्री का क्या है? जो ब्रिटिश या ऑफिशियल रिकॉर्ड है, किसका? जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया था. क्योंकि सबसे पहले ब्रिटिशर्स ही थे जिन्होंने ये कहा कि हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होनी चाहिए, हर चीज़ रिकॉर्ड फॉर्म में होनी चाहिए. ओके, तो उसकी वजह से हिस्टोरियंस को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली और किसके बारे में? जो इंडियन हिस्ट्री के बारे में उस टाइम पे लिखने के लिए. और ब्रिटिशर्स क्या बिलीव करते थे? जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो एक्ट है, राइटिंग का जो एक्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. फिर एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, अग्रीमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप. वो ये कहते थे कि जो भी आप प्लान बना रहे हो, पॉलिसी बना रहे हो, कोई भी स्टेप ले रहे हो, किसी चीज़ से भी रिलेटेड कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, हर चीज़ आपकी जो है वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होनी चाहिए. और जब बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, अलॉन्ग विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग, मल्टीपल कॉपीज ऑफ दीज रिकॉर्ड्स. यस, अब क्या हुआ कि जिस टाइम पे 19th सेंचुरी का बिल्कुल मिड था, उस टाइम पे क्या हुआ कि जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई. तो इसीलिए इसके जितने भी वो रिटन रिकॉर्ड थे उनकी मल्टीपल कॉपीज़ निकलनी शुरू हुई. और उसको कहाँ कहाँ भेजा गया? हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हर एक कॉपी, हर एक रिकॉर्ड की एक कॉपी सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में भेजी गई या डिपार्टमेंट्स में भेजी गई. देन एक और चीज़, क्या चीज़ कॉमन हुई उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स ने कॉमन करी? उन्होंने एक चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंट माना. किस चीज़ को?
सर्वे को। वही कहते थे कि सर्वेइंग जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ कि किस टाइम पे जब कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था, मीन्स जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडिया को। सो इससे क्या था कि ये रिकॉर्ड हमें क्या बताते हैं कि व्हाट द ऑफिशियल्स थॉट, व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी। इन रिकॉर्ड से हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे ऑफिशियल्स क्या चाहते थे, क्या सोचते थे और उनका इंटरेस्ट किस में था और क्यों वो इन सब चीज़ों को प्रिजर्व करना चाहते थे। So these record always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their action. और इससे हमें और किस चीज़ में हेल्प मिलती है, हमें ये चीज़ समझने में हेल्प मिलती है कि उस टाइम पे जो लोग थे कंट्री के, वो क्या सोचते थे, क्या उनकी थिंकिंग थी एंड उनका जो एक्शन, जो भी वो एक्शन लेते थे उसके पीछे उनका क्या रीज़न होता था। फिर एज printing spread, newspapers were published and issues were debated in public. Leaders and reformers wrote to spread their ideas. Poet and novelists wrote to express their feeling. अब जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस बढ़ रही थी तो न्यूज़पेपर्स भी प्रिंट होने शुरू हुए और उसके बाद लोग जो थे क्या थे बहुत सारे पब्लिक इश्यूज जो थे उनके ऊपर भी डिबेट होना शुरू हुआ उसके ऊपर। और जो लीडर्स थे वो अपनी जो थिंकिंग थी, अपनी जो आइडियाज़ थे वो किस फॉर्म में, रिटन फॉर्म में लोगों तक पहुंचाना शुरू किया उन्होंने, किसके थ्रू, प्रिंटिंग के थ्रू। ओके, और जो नॉवलिस्ट थे, इवन जो नॉवेल्स लिखते थे, जो राइटर्स नॉवेल्स लिखते थे उन्हें हम नॉवलिस्ट बोलते हैं, तो उन्होंने भी अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करने शुरू किए। हिस्ट्री इज़ अबाउट द चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम, इट इज़ अबाउट द फाइंडिंग आउट ऑफ हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज इन द प्रेजेंट। एज सून एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। अब नाउ वी नो कि जो हिस्ट्री है वो बेसिकली क्या है कि उसमें जो है चेंजेस आते रहते हैं, इज़न्ट इट। अगर हम बात करें, जैसे अगर हम पहले की बात करें और जो हम आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री में, या आपने जो 7th में पढ़ा होगा उसमें और इसमें अभी तक में आपको बहुत सारे चेंजेस नज़र आए होंगे, इज़न्ट इट। तो अगर हम ये कहें कि अगर हम कंपेयर करते हैं पास्ट को प्रेजेंट से, तो हम बेसिकली किस चीज़ के बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट, बिफोर एंड आफ्टर। देन इफ समवन आस्क यू व्हेन पीपल began to drink tea or coffee, you would fail to answer this question. It is because people did not begin drinking tea on a one fine day. अगर आपसे पूछा जाए कि लोगों ने टी या कॉफ़ी कब पीना शुरू किया, तो हम लोगों के पास ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिर्फ एक दिन में ही लोगों ने चाय पीनी नहीं शुरू कर दी। They develop the taste for it over time, thus you can only refer to a span of time. ओके, अब क्योंकि धीरे धीरे उनको टेस्ट आना शुरू हुआ था, तो हम ये कह सकते हैं कि इस पीरियड में उन्होंने स्टार्ट किया था। हम पर्टिकुलर डे या डेट नहीं बता सकते हैं। सो स्टिल हैव इनफ रीजन वाई वी एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट, इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। यस, स्टिल हमारे पास बहुत सारे रीजन्स हैं जिसे किस चीज़ के रीजन्स है कि हम हिस्ट्री को क्यों एसोसिएट करते हैं, क्यों लिंक करते हैं डिफरेंट डेट से। इसलिए करते हैं कि पहले जो हिस्ट्री है वो बेसिकली किसके बारे में होती थी, बेसिकली होती थी बैटल्स के बारे में, जो किंग्स आपस में लड़ते थे और जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते थे। इवन हिस्ट्री जो है वो बहुत टाइम तक इसके बारे में भी लिखी गई है कि कब एक पर्टिकुलर किंग को थ्रोन मिला, उनको कब क्राउन पहनाया गया, फिर उनकी मैरिज कब हुई और उनके बेबीज़ कब हुए, इसके बारे में भी है। उसके लिए भी प्रॉपर वो उन्होंने कौन सी बैटल कब फाइंड आउट, मतलब कब फॉट करी, ये सारी जो थी पहले वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो एक हिस्ट्री में नोट डाउन किए जा रहे थे। फिर फॉर सच इवेंट्स स्पेसिफिक डेट्स वर फिक्स्ड, और ऐसे इवेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट डेट्स वर फिक्स्ड। नाउ हाउ डू वी डिटर्मिन दैट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ डेट्स इज इम्पॉर्टेंट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये डेट इम्पॉर्टेंट है? सी, अगर कोई भी एक डेट होती है, हम कोई भी एक जो डेट होती है उसको कब हम इम्पोर्टेंट बनाते हैं? जब हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, उस पर्टिकुलर वैल्यू, उसको उस पर्टिकुलर डेट को इम्पोर्टेंस देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल
अगर मैं कहूँ कि आपका जो बर्थडे, सबके बर्थडेज अलग अलग डेट पर आते हैं, तो मेरे लिए मेरी जो बर्थ डेट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, इज़न्ट इट? आपके लिए आपकी बर्थ डेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। लेकिन जैसे अब हमने बहुत सारे नेशनल लेवल पर बहुत सारे डेट्स इम्पॉर्टेंट बना दिए हैं, बहुत सारी डेट सेलेक्ट कर दी हैं, लाइक अर्थ डे था 21 को, इज़न्ट इट? सो इसी तरह से हम डेट्स जो हैं वो अपने आप ही इम्पॉर्टेंट बनाते हैं। जब हमें लगता है कि उस पर्टिकुलर डेट पे कोई इम्पोर्टेंस है, तब हम उसे इम्पॉर्टेंट बनाते हैं, अदरवाइज वो कॉमन ही होती है। The dates we select, the dates around which we compare our story of the past are unimportant on their own. They became important because we focus on a particular set of dates. Now the historians written by British historians, the histories written by British historians in India, the rule of each Governor General was important. These histories began with the rule of the first Governor General, Warren Hastings, and ended with the last Viceroy, Lord Mountbatten. अब जो ब्रिटिशर्स की जो हिस्ट्री थी, वो उन्होंने कौन सी हिस्ट्री, बेसिकली जो हिस्ट्रीज थी, उन्होंने जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने कौन सी हिस्ट्री लिखी, जब वो लोग रूल कर रहे थे इंडिया से। और उन्होंने वो हिस्ट्री कब स्टार्ट करी ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने? जिस टाइम पर फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे। कौन से थे फर्स्ट गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग। और जब उनके लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन आए, तो बस वहाँ तक उन्होंने हिस्ट्री लिखी, उसके बाद नहीं। फिर जेम्स मिल वॉज अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर इन 1817। ये मैंने आप लोगों को बताया है कि उन्होंने बहुत बड़ा सा एक 3 वॉल्यूम बुक लिखी थी, जिसका नेम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था 3 में, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। We divide history into different periods in order to capture the characteristic of a time, its central feature as they appear to us. So the terms through we periodize demarcate the difference between years. जिस टाइम पे हम डेट को या उसको पीरियडाइज करते हैं, टाइम को पीरियडाइज करते हैं, उससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हमने 2 या 3 में डिवाइड किया है, तो दैट मीन्स वहाँ पे बाउंड्री आ गई है, डिमार्केशन हो गया कि यहाँ से और यहाँ तक ही हमें फोकस करना है। Then Mill was of the opinion that all Asian societies were of lower level of civilization than Europe. According to his telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country. और जेम्स मिल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो लोग जो थे वो एशिया के बेसिकली उनका जो लेवल था सिविलाइजेशन का, वो बहुत लो था इन कंपैरिजन टू यूरोप। और वो ये कहते थे कि इंडिया में भी जब हिंदू और ब्रिटिशर्स के आने से पहले सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम रूलर्स ने अपने आप को ज़्यादा सिविलाइज या स्टैंडर्डाइज नहीं किया हुआ है। और अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग स्टोरी, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पॉट रूल्ड द कंट्री। और रिलीजियस इंटॉलरेंस एंड कास्ट टैबूज डोमिनेटेड। वो ये कहते थे कि जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, तब तक सिर्फ हिंदू और मुस्लिम रूल करते थे, और वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग ही रूल करते थे। ओके, और बेसिकली जो सोसाइटी थी वो कास्ट बेस्ड थी और रिलीजियस बेस्ड थी। देन जो ब्रिटिश रूल वो ये कहते थे, मिल ये सोचते थे कि जो रूल था, जो ब्रिटिश का रूल था, वो ज़्यादा सिविलाइज था। The British were absolutely prejudiced in classifying the Indian history, so the British classification of the Indian history cannot be justified. It is because a variety of faults exist simultaneously along with the Hindus and Muslim in these periods. तो जो क्लासिफिकेशन इंडियन हिस्ट्री का ब्रिटिशर्स ने दिया है, उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं जस्टिफाई कर सकते? क्योंकि बहुत सारी फॉल्ट जो साइमल्टेनियसली अराइज हो रहे थे। किस वजह से? क्योंकि हिंदू और मुस्लिम जो थे इस पीरियड में बहुत ज़्यादा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे। सो हियर आई एम गोइंग टू एंड द lecture with this topic. We'll be continuing in the next lecture. Thank you.